Today I'm going to discuss graph. First I will discuss velocity type graph. In previous lecture I have discussed distance time graph. Now here velocity time graph. Velocity time graph. By this graph we study the variation of velocity with time, how velocity changes with time, and in this graph time is shown on x-axis and velocity is shown on y-axis. Just I am taking a general velocity time graph. This is x-axis and time is shown here. आपको मेंशन करना पड़ेगा टाइम का सेकंड यूनिट भी, and here on y-axis velocity, that is meter per second origin. Now I am going to take a very general graph, very general VT graph. VT means velocity time graph. I have taken this. This is the graph variation showing velocity versus time. Now see, if this is the VT graph, आइए फाइंड करते हैं by using this graph क्या क्या इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं. Now see children, now take one point on this graph. Take one point here. Let this point is P. This point is P. If you draw perpendicular from P to time axis, you will get a particular time. Let that time is T1. And if you draw perpendicular on velocity axis, you will get a particular velocity. So, if you are taking a point P, then you can find a velocity at a particular moment, instantaneous velocity. At any time velocity फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसको बोलेंगे VI. I means what? Instantaneous velocity. Instantaneous velocity फाइंड कर सकते हैं. Second, if you are taking 2 points on the graph, then you can also find change in velocity. Change in velocity for any time interval. Time interval. These two are the very important information which we can find by using velocity time graph. Now children, for third क्या इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए एक काम करते हैं. I will draw a tangent at point P. Draw tangent at point P. मेरे साथ you also draw tangent. Like this is a tangent at point P. That means what? A line which touches the curve at one end, only one point. See, now on this tangent, take 2 points, let A and let here B.
I have taken 2 points A and B. अब क्या करना है, A and B से draw perpendicular on time axis from A and B. अब इसको मैं हटा दे रहा हूं. Let this is T2 and this is T1. And same time draw perpendicular from A and B on velocity axis. अब इसको हटा देते हैं. Right here V1 and right here V2. इसके भी में कोई जरूरत नहीं है. Now see, if you extend this line B wala point in forward direction, it will touch here. Let this is the D. This is the D. Now see children, this is the theta, एक एंगल है और ये एंगल ये बताता है कि व्हाट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द कर्व. ये जो कर्व है वीटी कर्व, इस पॉइंट पी पे कितना इंक्लाइंड है, किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ. मीन्स बाय नोइंग दिस एंगल यू कैन फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट पॉइंट पी विद टाइम एक्सिस. मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि थीटा जो फाइंड करेंगे, थीटा इज द slope or inclination of VT curve at P with time axis. ऐसा मान लिया कि जो थीटा है दैट इज द इंक्लाइनेशन एट पॉइंट पी विद टाइम एक्सिस ऑफ द वीटी कर्व. आइए बाय यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड करते हैं स्लोप है क्या, ये स्लोप है क्या. नाउ स्लोप एट पी, स्लोप एट पी दैट इज थीटा इज इक्वल टू. चिल्ड्रन स्लोप फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है एट एनी पॉइंट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बट हियर ऑन y एक्सिस आई हैव शोन वेलोसिटी, ऑन x एक्सिस आई हैव शोन टाइम. तो ये पता क्या हो जाएगा, दैट विल बी v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमने y पे दिखाया है, टाइम हमने x पे दिखाया है. दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. नाउ सी चिल्ड्रन, हमने क्या फाइंड किया, स्लोप. क्या मिल गया, डेल्टा v बाई डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. एंड ये देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये है क्या, ये this is the acceleration. This is what children, acceleration at P. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन कि इफ यू कैलकुलेट स्लोप ऑफ द VT graph at any point, you will find acceleration at that moment. Thus slope at any point of VT graph, या फिर मैं लिख दूं at any time VT graph gives acceleration at that टाइम. इसको आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं. तो पहली इंफॉर्मेशन हमको क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय यूजिंग VT ग्राफ.
second change in velocity, and third if you calculate slope of the VT curve at any point, that slope gives acceleration at that point. These are the very important, but out of these, this third one is the most important information, which is we can find by using VT graph, velocity time graph. Very good. Note down till here, and we'll discuss some more point. Now children, see, I have taken here a general graph of VT, velocity, general graph, velocity versus time. Now, अगर मैं बात करता हूं different type of VT graph, different types of VT ग्राफ, देखते हैं अलग अलग टाइप का VT ग्राफ जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, मतलब उसका मतलब क्या निकलता है. चलिए, फर्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दो एक साथ बनाता हूं. ये है T, ये है V. आई हैव टेकन अ स्ट्रेट लाइन कर्व, मींस वेलोसिटी एंड टाइम का जो वेरिएशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पता है कब आता है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होती है. इन बोथ द ग्राफ आई हैव टेकन स्ट्रेट VT कर्व, स्ट्रेट सीधे रेखा है, स्ट्रेट लाइन. डिफरेंस क्या है, इन फर्स्ट वन दिस कर्व इज पासिंग थ्रू origin, but here this is passing through this point, not origin. मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो ओरिजिन है, यहां पे वेलोसिटी क्या है, 0. हियर v इज इक्वल टू 0, बट हियर v इज इक्वल टू नॉट 0. इसका मतलब इसमें इनिशियल वेलोसिटी इज 0, बट हियर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0. हम इनिशियल वेलोसिटी को हम जनरली u से दिखाते हैं. किससे दिखाते हैं, u से. इज नॉट 0. हियर इनिशियल इज नॉट 0 एंड हियर इनिशियल इज 0. ये तो पहला दिख गया ग्राफ से. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने यहां पे टाइम के साथ कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी अलग अलग पॉइंट पे, यू विल गेट दिस इज व्हाट, स्लोप टाइम के साथ, स्लोप टाइम के साथ. तो क्या दिख रहा है, स्लोप हर जगह पे क्या है, सेम है. क्या है, सेम है. इस ग्राफ में स्लोप इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट. इन बोथ द ग्राफ्स, both the VT graphs, slope is same everywhere. एंड स्लोप से क्या मिलता है भाई, एक्सेलरेशन. अगर स्लोप सेम है इट मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन भी सेम है. thus it shows यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इसका मतलब कि दोनों ग्राफ है, दिस इज द VT ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. VT ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स हर जगह पे एक्सेलरेशन सेम है. इसका मतलब सपोज यहां पे अगर कोई व्हीकल है और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, then after 5 seconds it will be, let it is 40 meter per second. 5 सेकेंड के बाद नेक्स्ट आफ्टर 5 सेकेंड के बाद ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड. फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड के बाद हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड. मीन्स फॉर एवरी फिक्स टाइम इंटरवल चेंज इन वेलोसिटी इज सेम. इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ये क्या दिखा रहे हैं, बोथ आर द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. डिफरेंस क्या है, इन फर्स्ट वन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, बट हियर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0. ओके,
Now, next type. Now, the next type of VT graph, वो है क्या? That is this graph, VT graph actually children is very important. न्यूमेरिकल बड़े आसानी से कर लेंगे अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया तो. Now see, VT graph, first, second. Now third type of VT graph. Third. Time axis and velocity origin. Now let here VT graph is this. Is this. ये क्या है? ये है VT graph parallel to time axis. पैरेलल का मतलब पता क्या है? ये लाइन और टाइम एक्सिस दोनों क्या है? थीटा इनके बीच में 0 है. दिस shows slope theta 0 with time axis. With time axis. ये जो ग्राफ है ऐसे ऐसा होता है. इफ इट इज लाइक दिस, तो ये क्या होता? ये स्लोप था, लेकिन इसको कम करते गए, करते 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 क्या हो गया? पैरेलल हो गया. नाउ थीटा बिकम्स 0. थीटा 0 हो गया मीन स्लोप 0 हो गया. एंड इफ स्लोप इज 0 इट मीन्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0. क्या बोलेंगे भाई? 0 acceleration VT graph. This is the graph of 0 acceleration. Means if VT curve is parallel to time axis, it shows acceleration is 0. और acceleration 0 का मतलब पता है क्या होता है? इसका दो मतलब हो सकता है. Either object is at rest, either रेस्ट की पोजीशन है और नो चेंज इन वेलोसिटी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी. नो चेंज का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Uniform velocity, or you can say this is the graph of 0 acceleration, this is the graph of uniform velocity, this is the graph of uniform motion. Okay, तो ये सेकेंड ग्राफ, ये जो थर्ड ग्राफ है, that is very important. Children, note down, and then I will discuss next graph, and next means fourth type of the VT graph. Fourth, VT origin, like this. जो हमने जनरल केस लिया है. Now see, I am taking here a point and I have drawn tangent. ये है slope. I have taken here point and I have drawn tangent. Slope. I have taken here point, I have drawn tangent, slope. Point मान लेते हैं A, B, C. टाइम के साथ स्लोप क्या हो रहा है? देखो यहां पे, लाइक इट इज θ1, θ2 एंड θ3. टाइम के साथ स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. θ3 इज ग्रेटर देन θ2, इट इज ग्रेटर देन θ1. टाइम के साथ स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन. मींस इसमें क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है. VT graph
of non-uniform acceleration. क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये था किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म. लेकिन कैसा? बढ़ रहा है ये. इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. क्या है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम. अब यहीं पे एक और बनाऊंगा मैं, जैसे इसका उल्टा. दिस इज द ऑल्सो ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बट देयर स्लोप इज डिक्रीजिंग. स्लोप डिक्रीजिंग का मतलब चिल्ड्रन क्या होता है? एक्सेलरेशन decreases like this. It is like this. If you take some points here, dot tangent, slope, ये है slope, ये है slope, ये है slope. θ1, θ2 and θ3. यहां पर देखिए with the time slope decreases. ये भी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बट प्रॉब्लम क्या है? हियर एक्सेलरेशन डिक्रीजेस. यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. बोथ आर द VT कर्व ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट हियर स्लोप इंक्रीजेस. दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है. यहां पे स्लोप कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ओके ओके चिल्ड्रन, वन मोर ग्राफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ. दैट इज सिक्स्थ वन इज व्हाट? If I draw a sixth VT graph like this, time, velocity, let VT graph is parallel to velocity axis. यहां पे एक टाइम है. So children, velocity is increasing but time is not changing. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ये ग्राफ क्या है? Not possible. To discuss VT graph especially for uniform motion. You know, VT graph for uniform motion is what? That is parallel to time axis. आइए ड्रॉ करते हैं. VT graph for uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी. एंड यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, VT ग्राफ इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. दिस इज द VT ग्राफ. यहां पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, नो चेंज. Now interesting fact is this: if you take any 2 point during motion, let A and B. If you have taken these 2 points during motion, means it is under some time interval. Yes, means when object is at point A, let time is t1, and when at B, let time is t2. ये क्या है? टाइम इंटरवल. कौन सा? T2 minus T1. आइए नाम रख देते हैं. C, ये है D. ओके, तो जरा सा एक काम करते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट चिल्ड्रन, सी हियर दिस शेडेड पार्ट. दिस इज द एरिया अंडर VT कर्व. एरिया अंडर VT कर्व फॉर दिस गिवन टाइम इंटरवल. देखते इससे मिलता क्या है. ओके, area under VT curve. VT is not Victoria terminus, velocity time curve for given
time interval or between time. This is what area. ये शेप दिख कैसा रहा है? यहां पे दिखना लग रहा है स्क्वायर है ये, बट एक्चुअली स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट इन दोनों में कोई भी हो, फॉर्मूला क्या होता है पता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया का ABCD, ABCD, दिस इज L इंटू B। अब लेंथ को मान लेता हूं AD। क्या मान लेता हूं इसको भाई? AD मान लेता हूं, और ब्रेड्थ के लिए हम ये मान लेते हैं AB। वेरी गुड। अब जरा देखिए, लेंथ इज AD, AD क्या है? V, वेलोसिटी, एंड AB इज इक्वल टू व्हाट? DC, एंड DC क्या है? दिस टाइम इंटरवल, T2 माइनस T1 मान लेते हैं, टाइम का डिफरेंस T होगा, दिस इज T। ये क्या है भाई? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? वेलोसिटी इनटू टाइम इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। या मतलब अगर आपने किसी गिवन टाइम इंटरवल में VT कर्व का एरिया फाइंड कर लिया, तो दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट चिल्ड्रन। ओके, मीन्स एरिया अंडर VT कर्व फॉर एनी गिवन टाइम इंटरवल is numerically equal to displacement covered for that time interval. Thus, area of VT, of नहीं, under और भी स्पेसिफिक लिख दो, एरिया बिटवीन VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस and time axis for given time interval gives displacement, numerically displacement। ओके, तो जरा देखिए, VT ग्राफ से हमने फाइंड किया वेलोसिटी एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। स्लोप से क्या फाइंड किया? एक्सेलरेशन। और अभी एरिया से क्या फाइंड कर लिया? डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड कर लिया? डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सा और जर्नलाइज अगर करना चाहें, देन यू कैन। कैसे? जैसे आपने एक ऐसा ग्राफ ले लिया, V एंड T, मान लेते हैं ग्राफ इज लाइक दिस इज द VT ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लेते हैं आप कोई एक पॉइंट P है, और यहां पे T इज इक्वल टू 0 है, एंड हियर इज T इज इक्वल टू व्हाट? T मान लिया। तो यहां पर भी ये है VT कर्व, ये जो अंडर इसके एरिया है, इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट कवर इन टाइम T। ओके, these are the some information, all the informations which you can find by using VT